Good morning, children. Today I will tell you trigonometric identities. On the basis of that, I will solve questions of exercise 8.4 NCERT class 10th. So the first identity is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. The second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, right? Apart from that, you know that sine theta is reverse of cosec theta, this you already know. Similarly, cos theta is reverse of sec theta, and similarly tan theta is reverse of cot theta, and vice versa. Okay, so these identities you have to understand, you have to keep it in your mind so that you can solve this exercise. Okay, I'm erasing it. You must have noted it down. I'm giving some time to note it. Exercise 8.4, question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. मतलब तुम लोग को sin A को cot A के वे में लिखना है, sec A को cot A के वे में लिखना है और tan A को भी cot A के वे में लिखना है. Okay, so see, first of all, sin A, right? So sin A is what? 1 upon cosec A. अभी मैंने बताया जो दूसरे के रिवर्स होते हैं, right? Now remember this third identity. What will be cosec A? Can you tell me? 1 plus cot square A. This is cosec square A. That is the third identity. याद करो. और चूंकि cosec A है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो. 1 plus cot square is cosec square A. स्क्वायर रूट लोगे क्या आ जाएगा? cosec A. क्लियर? तो साइन ए को हम लोग ने लिखा cot A के वे में, right? Now similarly you have to write sec A in terms of cot A. Sec A in terms of cot A. Sec A क्या होता है याद करो. What is the second entity? 1 plus tan square A is equal to sec square A. So this is your 1 plus tan square A square root. Clear? अब tan ये क्या होता है? cot का उल्टा होता है, तो इसको लिखो 1 plus 1 upon cot square A. Clear? So this is equal to LCM cot square A और ये 1 plus cot square A. क्लियर? नीचे वाला cot A हो जाएगा. डिवाइडेड बाय cot A. तो sec को भी हमने cot A में लिख दिया. tan A तो आप भी खुद बता लोगे. tan A को cot A में कैसे लिखेंगे? जस्ट थिंक, tan तो खुद ही cot का उल्टा है, 1 upon cot A. तो sin A को मैंने कैसे लिखा? ऐसे लिखा. sec A को ऐसे लिखा. tan A को मैंने ऐसे लिखा. नोट इट डाउन if you want. I'm giving you time. Question number 2. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. sec A के छोड़कर जितने हैं sin A, cos A, tan A सबको लिखो sec A के फॉर्म में लिखो, राइट? तो ऐसा करो. sin A, remember the first identity, sin square A plus cos square is equal to 1. So what is sin A? What will be sin square A? It will be 1 minus under root. Clear? From the first identity. Now cos A is what? Tell me. 1 upon
sec square a. So what it will be? Sec square a square root sec square a minus 1. ये क्लियर? स्क्वायर रूट पूरा कर दिया. नीचे वाला क्या हो जाएगा? sec a, और ये क्या हो जाएगा? ये देखा? तो मैंने sin a को sec a के फॉर्म में लिख दिया. cos से तो सोचो ही मत. cos से में क्या रखा है? cos तो खुद ही sec का उल्टा है. क्लियर? सिमिलरली tan a, मैं यहां कर रहा हूं remember the identity number 2, 1 plus tan square a equal to sec square a. so tan a को कैसे लिखेंगे बताओ? sec square a minus 1 square root. इज क्लियर? तो अब कुछ चिंता ही नहीं. साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया. साइन को उलट दो तुम्हें कोसेक मिल जाएगा. साइन यही ना है, साइन ये है, इसको उलट दो, खत्म. sec a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट. क्लियर? उसी प्रकार से sec को तो छोड़ ही दो. और ये cot a, इसी को उलट दो तो इट विल बी 1 अपॉन. क्लियर? sin square 63 plus sin square 27 cos square 17 plus cos square 73. So this we have to evaluate. This is the question we have. So तुम करो क्या? ये 63 27, तो 63 को 27 के वे में लिखो. 90 माइनस 27. अब इसे मत चेंज करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो. अगर दोनों को बदलोगे तो आंसर नहीं आएगा. या तो इसको बदलो या इसको बदलो. तो मैंने 63 को बदला और ये छोड़ दिया मैंने. अपॉन सिमिलरली इसे लिखो 90 माइनस 73, वो ऑटोमेटिक 17 आएगा, या ऑटोमेटिक 63 आएगा. और इसे मत चेंज करना, छोड़ दो ऐसे ही. क्लियर? 63 को मैंने ऐसे लिखा, 17 को ऐसे लिखा, यहां कोई चेंज नहीं, यहां कोई चेंज नहीं. तो फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ाया गया है. ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई ये हो गया साइन थीटा. साइन स्क्वायर 73 प्लस, अब ये भी बताया तुम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? 1. ऊपर ही 1 और नीचे भी 1. आंसर इज 1. नोट इट डाउन. I hope you must have noted it. So we should sin 25 cos 65 plus cos 25 and sin 65. ठीक है?
इसमें वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया, इसको चेंज करो, ठीक है, सबको 65 के वे में ले आओ। साइन 90 माइनस 65, 25 को मैंने ऐसे लिखा, ये छोड़ दिया मैंने ऐसे ही, अब इसको पूरा 65 वे में आ गया, ऐसे ही इसको भी 65 में ले आओ। 25, 90 माइनस 65 एंड साइन 65, ये क्या हो गया, cos 65, cos 65, ये क्या हो गया, sin 65, ये क्या हो गया, sin 65। सो ये तुम्हारा हो गया cos स्क्वायर 65, ये क्या हो गया, sin स्क्वायर 65। नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। फिनिश्ड, नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू टाइम। Okay, this is noted. Now we have to do question number 4, I think so. Choose the correct option, justify your choice. 9 is x square a minus 9 tan square. These are easy. You can take 9 common. You should remember the second identity जो मैंने आपको पढ़ाई आज, 1 plus tan square a is equal to sec square a, 1 plus tan square a to sec square a, sec square a minus tan square a क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, this is 1, so answer is 9, ठीक है, answer is 9, note it down। तो मैं सेकेंड पढ़ाऊँ, प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, फिर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 को इस पूरे से करोगे मल्टीप्लाई तो यही आएगा ना, जस्ट राइट। अब tan थीटा को इस पर मल्टीप्लाई करो तो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। फिर ये सेक थीटा से करना है, सेक थीटा को इस पर सिंप्लाई करो, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, क्लियर। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आएगा क्योंकि दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, सो दिस विल बी व्हाट 1, क्लियर। नाउ सॉल्व दिस। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, इंटू 1 अपॉन sin थीटा, क्लियर। यहां देखो प्लस
sec theta. Sec theta into cot theta. Sec theta is 1 upon cos theta, और cos theta क्या होता है? Cos theta upon sin theta. माइनस sec theta cosec theta. ठीक, ये देखो कट गया, और यहां देखो ये कट गया. क्लियर? अब देखो क्या क्या रह गया. वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. So I can write 2 here. I am leaving it. 1 plus 1 2. ये 1 और ये 1 मिलके 2. 2 plus cot theta माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा. ये क्या होगा? 1 अपॉन कॉस माइनस सेक. ठीक, ये प्लस सेक प्लस 1 अपॉन साइन क्या होगा? कोसेक प्लस कोसेक थीटा और माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा. देखो क्या कट गया, ये कट गया. एनीथिंग मोर? ये देखो कट गया, कोसेक कोसेक कट गया. व्हाट इज रिमेनिंग? लेट अस नोट इट डाउन. 2 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा. एनीथिंग मोर? माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा. क्लियर? अब देखो कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन. और tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और ये 1 अपॉन साइन थीटा. एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ऊपर क्या आ जाएगा? 1. मैं लिख देता हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन न लगे. माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. इज इट क्लियर? सो दिस थिंग इज 1, दिस थिंग इज 1, दिस इज ऑल्सो. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये आर कैंसल्ड. व्हाट इज रिमेनिंग? 2. So the option is 2. Right. Note it down carefully. मैं आपको समय दे रहा हूं. Okay. You must have noted. Then what we have to do? Third part. Yes. So question number 4, third part. Sec a plus tan a into. तो इसको पूरा ब्रेक करो. जैसे सेकेंड में ब्रेक किए थे ऐसे से ब्रेक करो. सेक ए को इस पूरे से करोगे, tan ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे. तो सेक ए इंटू 1 क्या आ गया? सेक ए माइनस सेक ए साइन ए प्लस tan ए इंटू 1 tan ए माइनस tan ए साइन ए. क्लियर? देखो sec a इज व्हाट? ये साइन ए लिखो. sec a क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए. तो ये कॉस ए नीचे आ गया. tan a
माइनस टेन ए साइन ए। साइन ए अपॉन कैसे क्या होता है, टेन ए होता है ना, ये भी टेन ए है, या कैंसल, क्या बच गया, सेक ए माइनस टेन ए एंड इंटू साइन ए। So sec is 1 upon cos A and tan is sin A upon cos A into sin A। Are you clear? tan A को मैंने ऐसे लिखा, sin A को ऐसे लिखा। So this is your 1 upon cos A minus sin square A upon cos A। Are you clear? अब एक cos से एलसीएम ले लो, क्या हो गया ऊपर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। कॉस ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है करेक्ट। Note it down. I'm giving you some time. Okay, you must have noted it. Okay, question number 4 का 4 किया जाए। What is it? 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A। ठीक, तो ये तो बड़ा इजी है। सेकंड आइडेंटिटी, फर्स्ट प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए। मैंने क्या बताया, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए। क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक, नोट इट डाउन। ओके, यू मस्ट हैव नोटेड इट। यस, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी। पहले इसमें LHS या RHS दोनों में से किसी एक को लेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, RHS मिल जाएगा। सो नोट डाउन लेफ्ट हैंड साइड, इट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। राइट, आपको लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो उसको ऐसा हमको सॉल्व करना है कि वही RHS आ जाए। तो ये जानते हो, ये भी जानते हो कॉस थीटा क्या होता है, इसे क्लियर। तो साइन थीटा एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया, ये दिस इज लाइक दिस। Is it clear? So this is 1 minus cos theta का whole square divided by sin square theta. Are you clear? So what is sin square theta? This is 1 minus cos square theta. Now this is a square minus b square. उसको उस वे में लिख दो, a plus b into a minus b. Is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, a minus b, a plus b, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये है, ये स्क्वायर्ड है, ये है पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक 1 माइनस cos थीटा ऊपर रह जाएगा अपॉन 1 प्लस, देखो RHS में क्या लिखा है, ये लिखा है ना,
So this is equal to second LHS, put it down, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. ठीक, RHS में क्या है 2 sec A, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 sec A आए। तो LCM 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सिंपल अर्थमेटिक जैसे होती है, ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसल, तो दिस कॉस इज मल्टीप्लाइड विद दिस कॉस ए, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस ए कैंसल एंड 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से उसको स्पैन कर दो, डिवाइडेड बाय, नीचे का मत ब्रेक करो, ऐसे छोड़ दो, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ 1, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन ए, टू कॉमन, इसे क्लियर, क्या कैंसिल होगा बताओ 1 प्लस साइन ए, और क्या बच गया ये भी बताओ 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो क्या हुआ ये 2 sec A, which is equal to RHS. Note it down, I'm giving some time. Okay, so I think this is sufficient for today's session. We'll meet in the next video session. Okay, see you, bye bye.